thousands of dollars in a month, but you don't need a camera, you don't need a mic, you just need a phone that everybody has. आप देख सकते हो हमने इसको टाटा सुमो बनाई है कश्मीर की फरत देखो, अब मैं गियर चेंज करूँगा यहाँ पे। तो हमने अभी पहला फेज़ शूट किया है। मैं आ चुका हूँ घर और मैं थोड़ी पढ़ाई कर रहा था अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ सर्विस ओंटारियो। तो सर्विस ओंटारियो में जा रहा हूँ अपनी जो मेरी गाड़ी थी पुरानी, उसकी नई ओनरशिप लेने, क्योंकि मुझे वो इंश्योरेंस वालों को भेजनी है। उसके बाद होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट, जिस इवेंट का नाम है फ़ोटोग्राफ़ी। तो मजाक कर रहा हूँ, कुछ ख़ास नहीं हो रहा है, बट मैं कामरान जो यहाँ पे दूसरा कश्मीरी है, हम जा रहे हैं जो हमारा जो ब्रांड है कैश ओरिजिनल्स, उसके लिए थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी करने, मार्केटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी मैं निकल रहा हूँ पहले सर्विस ओंटारियो के लिए। आज है मंडे, मैं ऑफ हूँ पूरे वीक, क्योंकि मेरी कुछ छुट्टियाँ बची हुई थी। तो मैंने वो प्लान की थी लेकिन वो एज़ पर प्लान गई नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली सोच रहा था न्यूयॉर्क जाने की, बट मेरे पासपोर्ट पे एक स्टैम्प जो कैनेडियन गवर्नमेंट को डालना पड़ता है वो डला नहीं, तो उस वजह से मैं गया नहीं, वो डिले हो गया है। तो मेरा पूरा प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन यू नो व्हाट, ये वीक आई एम गोना यूटिलाइज टू डू व्हाट आई कुडंट डन लाइक इन पास्ट कपल ऑफ वीक्स, जो कि मेरा सेल्फ इमिग्रेशन के एग्ज़ाम है, तो उसके लिए रेडी होता हूँ, और बाकी जो काम है छोटे मोटे जैसे कि आज का काम है उसके लिए। तो सबसे पहले चलते हैं सर्विस ओंटारियो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। आपको पता है आज जैसे मैंने बोला कि मंडे है, और मंडे पे काम पे ना जाना, यू नो, इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू, बट इट्स मोर लाइक freedom, you know what freedom is actually, and how flexible you can be in your life, and you can do the things on your own. You don't have to follow a schedule, you don't have to ask permissions, you know what I mean. It's very hard to understand, but once you feel that you're in a loop of doing things every single day, waking up, going to work, come back home, sleep, go back tomorrow, again the same thing, then you realize that there's something called matrix that you're part of, and this matrix, you'll keep going in circles your entire life, but until and unless you start taking an action. When I say taking an action, that means you can start a small business, quit your 9 to 5, start a small business, do things as per your own convenience. You know, you can make small money initially, but then if you accelerate your business, you put all the work that you're putting for some other person in your 9 to 5 job, I am pretty sure that you're gonna do very well in life. And that's the plan, that's the goal. But what I mean to say is everything has like everything happens in an order, right? Like you cannot just wake up tomorrow and you're like, okay, I'm quitting my job, I'm starting a business, right? To have a business, you have to have an idea what kind of business. You need money, a capital to start a business, right? You need workforce, you need marketing, you need bunch of stuff, right? Which is not hard. I mean, all you have to do is do some research, do some study, but starting is the biggest thing. And if you are a person who's like, okay, you know what, let's do this today, but have you studied the market? Have you studied your niche? Have you did you do the research before you were like, okay, let's do this? So what I mean to say is don't just start things with your emotions, right? Do proper research, do what's best for you, not just because you feel like it's best for you, but is it making sense, right? So start somewhere and start doing it. I mean, I have been waiting for something for quite a long time now, and once the thing is done, I'm gonna probably say bye to
9 to 5 and start building something that is, you know, more valuable to me. Start building something. If you are in between, let's say 14, 15 to 24, 25, like I would say 130, there is a lot that you can do on internet itself. If I tell you, I'll show you a video, couple of videos that are literally generating, I would say, if I talk about Canadian economy, probably thousands of dollars in a month. But I would say in India it's the same exact thing. They do generate a lot of money, but what they do is just post content on internet. But you have to be really smart and creative about it, how you do it. But are you willing to put an effort? You don't need a camera, you don't need a mic, you just need a phone that everybody has, and I would say, and a tripod. That's about it. And then as we know, everybody plays cricket, so make cricket content, make videos of cricket, get a ball, get a bat, get two guys and play cricket, post it on internet. You never know what's going to happen next. But are you willing to do it every single day? Are you willing to think that, hey, I'm going to make money out of it? No, right? You just go with a bunch of guys and then come back home, sleep. That's about it. That's what I did too, so I'm not blaming anyone, right? But what I'm trying to do here, I'm trying to educate you how to make money, right? I wish someone would have told me the same exact thing down the line 15 years or 10 years. I would have been a different person altogether now, right? But the thing is, it's never too late. Start and do what you can do. If you see, my truck is full of stuff, so I just got some cricket gears and equipments to sell. You will never ever be financially free if you don't sell anything. So get up, do something, sell something, post content on internet, make YouTube channels, make Instagram channels, make Facebook handles, post random content. People watch it, you know what I mean? So yeah, enough of the Gyan today. मैं पहुंच चुका हूँ. Sorry, this is a very weird transition that from English to Urdu. Service Ontario, since it's a government office, I don't think I should take my camera with me, but I'll be right back. तो मैं आ रहा हूँ सर्विस ओंटारियो से, बट बैड न्यूज़ ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये मेरे को ओनरशिप नहीं दे सकते क्योंकि सिस्टम अलो नहीं कर रहा है. लेकिन मैं अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है ये देख रहा था. क्या गेम हुआ, लास्ट पे सिराज जैसे आउट हुआ, कितने गलीज़ तरीके से आउट हुआ. मैंने कभी किसी को ऐसे आउट होते हुए देखा नहीं है. बट क्या गेम था यार, पूरा 5 दिन मतलब नॉन स्टॉप ड्रामा विच आई लव. तो गाइस, मैं चलता हूँ कामरान को पिक करने, तो उसके बाद हम निकलते हैं कहीं फ़ोटोशूट वगैरह करने. मैं रास्ते में ही था तो मैंने बोला मैं जाता हूँ फ़रहत से मिलने. तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़रहत, और मैं अभी जाऊँगा कामरान को पिक करने. फिर मैं मुइज़ के पास जा रहा हूँ, देखते हैं अगर मुइज़ अवेलेबल होगा तो उसको भी पिक करते हैं. मौसम बहुत गर्म है. कश्मीर में भी ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ पे भी ग्लोबल काफ़ी गर्मी है यहाँ. नहीं, अभी तो कश्मीर में मैंने सुना ठीक हुआ है वेदर, 2-4 दिन से बारिश वगैरह हो गई है. तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में. तो हम पहुँच चुके हैं कामरान के घर के पास. करते हैं इसको फ़ोन. हे श्री कॉल कामरान कश्मीर. हम साइड ये है कामरान. वालेकुम सलाम. सॉरी अबाउट दैट, सामान है थोड़ा सा. ये आ गए हैं कामरान. ये है कश्मीर का हीरो, कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है. वालेकुम सलाम. फ़रहत कर रहा है मुइज़ को फ़ोन कि बाहर आने को. अब मुइज़ का एक ही बहाना होगा, बोलेगा पहले तुम लोग अंदर आओ. मैं कहूँगा क्योंकि उसकी आदत है ना. बाहर आएगा घर से. ओ, इसको बोल आंखें खोल अपनी, अभी सोया ही हो गए. ओ ये देखो हीरो बाइसेप्स. ओ ओ ओ कैसा ये क्या
आप देखो इसने ना सलाम ना कलाम। बोलो ना जी क्या अच्छा हाय सर सलाम वालेकुम ये यूसुफ चला रहा था गाड़ी? असल बट नहीं ये मेरा दोस्त है कौन? इसकी जॉब लगी आज कहाँ पे? इजी गो में वो क्या है इजी गो? फाइनेंशियल कंपनी है बढ़िया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुइज़, जो कि मुइज़ जो हैं ये भी कश्मीर से हैं। आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको टाटा सुमो बनाई है कश्मीर की। फरत देखो, हम मैं गियर चेंज करूँगा यहाँ पे पर ये देखो, और पीछे हमारे साथ बैठे हैं एक और सवारी, और ये है मुइज़। हम पहुँच चुके हैं फैंशा कंजर्वेशन पार्क। ये अभी तक बोल रहा था यहाँ पे लाइट ही नहीं है, कहाँ आए हो? अब जब धूप स्टार्ट होगी बोलते अब होगी फिर से धूप स्टार्ट। धूप नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो ये नज़ारा जो है पूरा कश्मीरी की तरह है। क्या क्या कश्मीरी से अच्छा है? कश्मीरी से अच्छा है? हाँ ज़रा कौन सी जगह, एक जगह बता कश्मीर में जो इससे अच्छी है बता। सोपोर चौक, वहाँ पे दिन में इंसान गायब होगा। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ी सी टी शर्ट का फ़ोटोशूट। और यहाँ से नहीं, पागल रेस्टोरेंट क्या यहाँ पे क्या है? यहाँ से कैसे तू देगा? प्रार एक मिनट कामरान, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। मैं तुझे बोलूँगा ना क्या करना है, तू मत ले टेंशन। एक मिनट तू ऐसे ही रुक यहाँ पे, ठीक है? तो हमने अभी पहला फेज़ शूट किया है जो अभी तक हम कर रहे थे कामरान के साथ, ये पीछे यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा सा और करेंगे। यहाँ पे साइड से कुछ दरख्त भी हैं, तो वो वाले सीन्स भी हमारे नए मॉडल हैं। लेकिन इसको मुझे एक टेंशन है, इसको मुझे पे करना पड़ा, तो वो थोड़ा ख़र्चा आया इस पर। आप देख सकते हैं मॉडल, ये देखो, ये है मॉडल, हमारे 2 कश्मीरी मॉडल माशाल्लाह। चलो तो हम जा रहे हैं अभी दूसरी जगह पे शूट करने। हाँ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा चलना पड़ता है। मुइज़ यहाँ पे आ चुके हैं काफ़ी बार, तो उसको पता है कि स्पॉट्स कहाँ पे है। ये जगह मेरी और उम्मीद की फेवरेट हुआ करती थी। हम काम के बाद, जब मैं यहाँ पे स्कूल में था, तो हम रोज़ आते थे यहाँ पे। ये मुइज़ का जहाज़ है, ये जो जा रहा है ना, इसने ये लिया है रिसेंटली। क्या? हाँ ये वाला कहाँ से लाया है? ये मैंने खुद डिज़ाइन किया पूरा। ये हो रही है शूट। चल, कहाँ घर जाएगा? एक टी शर्ट भी और साथ में गिफ्ट कार्ड, $100 का गिफ्ट कार्ड भेजे। $25 की टी शर्ट इसने किसी को गिफ्ट का वो सच में भेजा था। हाँ उसने, तुझे पता है उसने मुझे $100 डोनेशन भी किया है। और मैं क्या बोलूँ, खैर चलो। अच्छे भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब मैं बोल रहा हूँ। तो हम निकल रहे हैं, हम इंशाल्लाह फिर से आएंगे। हम कोई और अच्छी सी जगह चूज़ करेंगे जहाँ पे हम प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। स्प्रिंग पार्क नहीं यार, कहीं और चलते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं घर।
आपसे मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। मैं आ चुका हूँ घर और मैं थोड़ी पढ़ाई कर रहा था अभी तक, बट अब मैं जा रहा हूँ रन पे। अभी वेदर हल्का सा ठंडा हो गया है, पूरे दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेदर थोड़ा सा गर्म ये ठंडा हो गया है। तो निकलता हूँ मैं रन पे। आप रखें अपना ख्याल। Everyone who's watching this, thank you so much for tuning in, and inshallah see you in next vlog. Assalamu alaikum.